everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss a lot of interesting proverbs. तो हम already discuss कर चुके हैं कि idioms क्या होते हैं and some of the very common and popular used idioms. Similarly there is another category जिसे हम कहते हैं proverbs. इन्हें हम हिंदी में कहते हैं कहावत. Sort of जो sayings होती हैं जो हमें advice देने के लिए कहा जाता है, those are the proverbs. Now proverbs are a bit easy to understand as compared to the idioms, क्योंकि idioms में क्या होता है भाई, जो लिखा होता है उसका कुछ अलग ही मतलब निकल रहा होता है और reality में उसका कुछ और ही meaning होता है जो हमें समझने की ज़रूरत है. But yes, in the proverbs somewhere आप जैसे ही उसको पढ़ते हो कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हो उसके मीनिंग के साथ कि अच्छा इसका मीनिंग ये हो सकता है. So proverbs होते क्या हैं, what do we call them in Hindi, and also some of the very most popular common जो proverbs होते हैं उनके meanings, उनके हिंदी में meaning and English में meaning बहुत, also उनका sentences भी हम cover करेंगे in this video so that sort of एक situation के साथ हम समझ पाए हर एक proverb को, then accordingly उसके meaning हमारे mind में automatically register हो जाए, and also we would see the usage so that कभी use करना हो in day to day conversations we can definitely go for this. Now proverbs और idioms भी एक sort of step होता है to improve your speaking or writing skills, because हम generally जो normal से words होते हैं who which are known by everybody वही use करते हैं in our conversations. But if we kind of try to use the idioms or common proverbs, phrases, different sort of जो sayings होती हैं उनको अगर हम use करने लगे अपने conversations में, definitely a very big difference can be created और एक decorative piece of writing लगेगा आपका, या फिर sort of आपके जो words लगेंगे they would also sound very creative if you kind of try to use these proverbs and idioms respectively in your sentences. Now इनको use करने के लिए obviously we need to understand right some of the proverbs जो हम use कर सकते हैं in our daily conversations and इनका मतलब क्या है, where do we actually use them. So everything we are going to discuss in this particular video. Now as we can see on the screen you also have one proverb. So all in all 25 proverbs will be discussed in this video, but yes this one is an extra one we can say, so एक 26 हो जाएंगे आपके proverbs that you will get to learn in this video. Now मैंने जो बोला कि proverbs हम जैसे ही पढ़ते हैं sort of उनका general meaning हमें already समझ जाता है. ये proof कैसे हो रहा है from the very proverb जो यहाँ पे दिया हुआ है. क्या लिखा है, time heals all wounds. ना यहाँ पर हील का मतलब ठीक कर देना भर देना, और वूंड का मतलब क्या होता है, जो इंजरी हुई है, जो घाव हुआ है, दैट. तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि समय के साथ जितने भी घाव होते हैं वो भर जाते हैं. दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी बहुत बड़ा झटका लगा है, वी आर लाइक शॉक्ड बिकॉज ऑफ समथिंग, या फिर हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आई थी लाइफ में, देयर वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी वूंड्स हमें मिले हैं, जो भी एक सॉर्ट ऑफ छोड़ के चले गए अपना एक कंक्लूजन दैट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर अस, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं धीरे धीरे वक्त के साथ. सो इट इज़ वॉट a saying to give kind of an advice to everybody कि कभी भी कोई भी चीज़ आती, कोई भी difficult situation आती है in life, we should not be like stuck with it कि अरे ये सब हो गया now it's the end. नहीं, because जैसे जैसे time pass होगा, like as the time will move on, similarly these difficult situations, the wounds, everything whatever is created in our life will also be like healed and everything will be all okay once again. तो इस तरीके से ये एक proverb है. Similarly पहले हम एक introduction देख लेते हैं and exactly what we are going to study in this video, let's discuss that. So first of all we would obviously see the basic introduction कि भाई मतलब क्या होता है word proverb का, what is actually a proverb, और फिर हम discuss करने वाले हैं common proverbs with their meanings. exactly कौन कौन से proverbs हैं जो हम use करते हैं day to day life, उनके meanings, then उनके हिंदी में भी meaning, because somewhere हमने कहावतें सुनी हुई होती हैं हिंदी में, ये सब words सुने हुए होते हैं, so अगर हम उसे link करके पढ़ेंगे तो फिर difficult नहीं होगा आपके लिए to keep in your mind. And also we would consider certain situations and accordingly we will draft some sentences so that हमें एक example मिल जाएगा, अगर एक usage मिल जाएगा, then definitely those proverbs will be like very easily we can grab them. Done? All right. So first of all we are going to see what exactly is a proverb. So a proverb is a short popular saying.
अब जैसे भी आप देखो कभी भी तो प्रोवर्ब को सेइंग्स भी कहा जाता है, यानी जो कुछ लोग कह के गए हैं। देयर आर पीपल जो ऐसे कुछ सेंटेंसेस छोड़ के गए हैं सॉर्ट ऑफ टू गिव यू एन एडवाइस रिलेटेड टू वो जो भी सिचुएशन थी, उस हिसाब से उन्होंने एक एक कोई सेंटेंस फॉर्म कर दिया था और उसको हम कहते हैं सेइंग या फिर proverb. They are kind of short, but yes, they have a very very deep meaning, and they are used to give advice about how people should behave, or that expresses a belief that is generally thought to be true. तो ये जो proverbs होते हैं, they are used to give you the meaning of what exactly you should do in your life to have like a normal peaceful टाइम। तो कैसे आपको बिहेव करना है इन योर लाइफ, किस तरीके से आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ डील करना है, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ एडवाइस टू यू, जो कि किसके थ्रू दी जाती है, प्रोवर्ब्स या सेइंग्स के थ्रू। या फिर ये कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि जनरली लाइफ का सच क्या है, लाइक व्हाट इज द ट्रुथ और द रियलिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वेरी इजीली, तो उनको किस तरीके से हमें ऑलरेडी एक एडवाइस के वे में, एक एडवाइस के रूप में हमें समझा दिया जाता है दैट यू कैन डू दिस, और या फिर आपको एक बिटर रियलिटी पता चलती है। ऑल दोज ऑल्सो, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो डन बाय दीज प्रोवर्ब्स। सो ओवरऑल प्रोवर्ब्स क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे सेंटेंसेज या छोटे छोटे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं टू काइंड ऑफ गिव यू एन एडवाइस, एक सजेशन देने के लिए, या फिर उसको यूज़ किया जाता है टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ ऑल अबाउट। अब इन्हें ही हम कहते हैं कहावत इन हिंदी। कहावत मतलब जो कही गई है, जो सेइंग्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी कहावत पढ़ते हैं हिंदी में या जो भी हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं इन इंग्लिश, ऑल दीज आर यूज टू काइंड ऑफ गिव यू एन एडवाइस, टू गिव यू बोलता चाहिए वाइडर पिक्चर ऑफ व्हाट इज एक्चुअली रियलिटी। डन, ऑल राइट। अब इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू जंप स्ट्रेट इनटू दीज, दैट इज कॉमन प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। अब कौन कौन से कॉमन प्रोवर्ब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, आपको सुनने को मिले होंगे कई कबार, बहुत ज़्यादा स्कूल में जब आप पढ़ते हो कहावत अलग बात है, वो तो आपने पढ़े ही होंगे। साथ ही साथ देर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे हमारे जो एल्डर्स होते हैं या फिर हमारे मम्मा पापा जो होते हैं, दे काइंड ऑफ टेल अस कि ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा गया है, एंड दे जस्ट थ्रो अ प्रोवर्ब ऑन यू। तो इस तरीके से ये प्रोवर्ब्स अगर पता होंगे, इट वुड बी वेरी गुड if you can also use these in your daily conversations, or you can use them in kind of your writing pieces, जो भी आप लिख रहे हो writing skills वगैरह improve करने के लिए। So overall these are really very helpful। Done, all right। So the very first proverb is, a bad workman always blames his टूल्स। तो सबसे पहले तो लिटरल मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे कि क्या सच में बहुत ईजी हो जाता है प्रोवर्ब समझना। जैसे इडियम में तो भाई लिटरल मीनिंग कुछ अजीब ही निकल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो अलग ही मीनिंग निकलता है, बट एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है, हैवी रेनफॉल, राइट। बट प्रोवर्ब में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फ्रॉम वॉट एक्चुअली इज रिटर्न और वॉट एक्चुअली वी कैन सी, एंड ऑल्सो वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रोवर्ब। जैसे यहाँ पर हम देखें, अ बैड वर्कमैन, यानी कोई भी जो काम कर रहा है और जो अच्छा नहीं है अपने काम में, तो बैड वर्कमैन, ठीक है। ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, वो हमेशा अपने आप को ना ब्लेम करके किसे ब्लेम करता है, उसके टूल्स को, जो भी उसने इक्विपमेंट्स यूज़ किए, जो भी टूल्स यूज़ किए टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क। यानी कि जो एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है इसका वो अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा ठीक है, ये मीनिंग है कि अगर कोई पर्सन है जो कि अच्छा नहीं है अपने काम में, तो वो अपने काम को या अपने आप को दोष न देते हुए किसे दोष देता है, अपने टूल्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, ठीक है। अब एक्चुअल मीनिंग देखते हैं। A person who has done something badly will seek to lay the blame on their equipments rather than admit their own lack of skill। मतलब exactly जो सेंटेंस हम समझ रहे थे या प्रोवर्ब समझ रहे थे, वैसा का वैसा ही मीनिंग है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अ पर्सन जो इतना स्किल्ड नहीं है या जो अपने काम में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो पर्सन कभी भी अपने आप को या अपने में उसकी स्किल्स की कमी होना या लैक ऑफ स्किल्स है उसमें, उसको कभी एडमिट नहीं करेगा। व्हाट ही वुड से इज कि भाई गलती किसकी थी, इन टूल्स की, इन इक्विपमेंट्स की, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ। और इसे हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सो वी हैव ऑलरेडी हर्ड दिस प्रोवर्ब, राइट। इसी को ही इंग्लिश में कहा जाता है बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन देखते हैं, जैसे कि आपको किसी को या फिर आपकी मॉम ने आपको बोला कि, या किसी को भी बोला, आपके एल्डर भाई को या बहन को बोला टू वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, एंड यू नीड टू यूज द वॉशिंग मशीन। नाउ
यू वर नॉट स्किल्ड इनफ कि किस तरीके से स्टेप्स फॉलो की जाती हैं टू प्रॉपरली वॉश ऑल द क्लोथ्स। आपने क्या किया, ऑल द क्लोथ्स यू वॉश वर लाइक डर्टी, दे वर नॉट क्लीन, एंड व्हेन योर मॉम टोल्ड यू कि क्या है ऐसे थोड़ी कपड़े धोते हैं, तो आपने क्या बोला, मॉम मैंने तो अपना अच्छा 100% दिया था, वॉशिंग मशीन में कुछ बुराई है। सो वॉट यू डिड वॉज, यू वर नॉट स्किल्ड इनफ टू वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, बट यू ब्लेम्ड द वॉशिंग मशीन इंस्टेड, जो कि टूल था, एक इक्विपमेंट था जिसको आपने यूज किया टू वॉश द क्लोथ्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आप क्या थे, कैसे वर्कमैन, वॉज अ बैड वर्कमैन, यानी नॉट स्किल्ड इनफ, एंड वॉट यू डिड वॉज यू डिड नॉट एडमिट योर मिस्टेक, रादर यू ब्लेम्ड ऑल योर टूल्स या फिर ब्लेम द वॉशिंग मशीन। क्लियर? सिमिलरली एक और सिचुएशन देखते हैं और उस पर फिर हम ये सेंटेंस भी कंसिडर करेंगे कि सपोज समीर है, ठीक है, उसको बोला कि उसको कुछ कुक करना है, कोई रेसिपी बनानी है, एंड ही सेड ठीक है मैं ये बुक है, ये यहाँ पे मैं इंटरनेट पे पढ़कर ये रेसिपी को यूज करके आई विल कुक फॉर एवरीबडी, ठीक है। नाउ ही कुक्ड, ही स्पॉइल्ड द डिश, पूरी रेसिपी जो भी थी उसने स्टेप्स वगैरह फॉलो की, बट वो अच्छे से नहीं बना पाया बिकॉज ही वॉज नॉट अ स्किल्ड कुक। आफ्टर लाइक द डिश गॉट स्पॉइल्ड, एवरीबडी वॉज लाइक कि अरे क्या बनाया है, तुम्हें आता नहीं एंड ऑल। तो समीर ने क्या बोला, समीर ने बोला कि नहीं जो रेसिपी बुक में दी थी उसी में कुछ गड़बड़ है, पक्का कुछ मिसप्रिंट है या कुछ गलत बताया गया है रेसिपी में, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया। सो हेयर समीर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज ओन मिस्टेक, ही वॉज लाइक कि गलती किसकी है, उस टूल की जिसको उसने यूज किया, फ्रॉम वेयर ही टुक द रेसिपी। क्लियर? तो इसको कैसे बोल सकते हो यूजिंग दिस प्रोवर्ब, व्हेन समीर ब्लेम्ड द रेसिपी इन द बुक फॉर द डिश ही स्पॉइल्ड, आई जोकिंगली सेड a bad workman always blames his टूल्स। फॉर एग्जाम्पल समीर ने क्या बोला कि मेरी गलती नहीं है, जो बुक में रेसिपी है उसकी गलती है कि उसकी वजह से जो हमारी डिश है वो स्पॉइल हो गई, खराब हो गई। तो मैंने जोक करते हुए बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है हमेशा, बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि इट वॉज योर मिस्टेक दैट यू कुड नॉट कुक, तुमने अच्छे से कुक नहीं किया बिकॉज यू नेवर न्यू कुकिंग, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज हमेशा यही होता है, यू वुड रादर ब्लेम द टूल। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक प्रोवर्ब को अगर हमने अच्छे से समझ लिया विद एवरी सिचुएशन, हिंदी मीनिंग एंड एवरीथिंग, तो क्या होगा, इससे फिर आपको बाद में कभी इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। डन? ऑलराइट, चलिए सेकंड प्रोवर्ब देखते हैं। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन है हु इज ड्राउनिंग यानी डूब रहा है, विल क्लच यानी वो पकड़ लेगा एकदम से किसको, एक स्ट्रॉ को, एक छोटे से तिनके को। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई भी पर्सन बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ड्राउनिंग यानी क्या, डूब रहा है, राइट, और उस वक्त अगर उसको एक छोटू सा सपोर्ट भी मिल जाता है, एक स्ट्रॉ का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, ऑब्वियसली वो उसको ग्रैब करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हेन होप ऑफ सक्सेस इज फेडिंग, जब लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बिल्कुल सक्सेसफुल होने के कोई चांसेस नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड, पीपल विल ट्राई एनीथिंग नो मैटर हाउ अनलाइकली इट इज दैट इट विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन। तो इंसान कुछ भी ट्राई करेगा, यू नो, एक छोटी सी, अगर उनको लग रहा है कि इससे ना के बराबर ही सपोर्ट मिलेगा, फिर भी वो उसको कोशिश करेंगे कि उसको यूज करें। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली यही कहा गया है कि अगर पर्सन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसको लग रहा है कि सब चीजें छूट रही हैं हाथ से, तो अगर एक छोटा सा भी सपोर्ट मिलेगा तो उसको ट्राई क्यों नहीं करेगा। इसी को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। सो ओवरऑल लिटिल मीनिंग समझ आ गया, ठीक है ना, जो बोलना चाह रहे थे, और इसका ऑब्वियस जो मीनिंग है वो भी वैसा का वैसा ही है, दैट इफ अ पर्सन इज एबल टू विटनेस और एबल टू सी दैट सक्सेस इज फेडिंग, यानी कि बिल्कुल चांसेस नहीं है टू गेट सक्सेसफुल, तो फिर वो क्या करेगा, अगर उसको अगर कोई भी चीज दिखती है जो वो ट्राई कर सकता है, भले ही उसकी बहुत कम चांसेस हैं कि उससे कोई सोल्यूशन मिलेगा, फिर भी वो पर्सन उसको करेगा, चूज उसको यूज करेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज उसको ये नहीं लगना चाहिए ना कि बिल्कुल ही हाथ से जाने दो सिचुएशन, थोड़ा बहुत तो वो ट्राई करेगा ही। एक सेंटेंस देखते हैं, ऑल्दो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस I tried my hand at the event to get an opportunity as a drowning man will always clutch at a straw। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि कोई इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ दिस इवेंट, कोई एक ऐसा सेमिनार होने वाला है जहाँ अगर आप पार्टिसिपेट करते हो यू गेट अ वेरी गुड प्राइज या कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। नाउ यू वर लाइक कि आपको पता है कि आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है एंड यू आर नॉट एट ऑल गुड फॉर द इवेंट, तो रादर देन कि आप जाओ ही नहीं, एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत ट्राई करोगे, यू नो, कि चलो कोई कोशिश तो कर लें। सो दिस इज द थिंग कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी टू गेट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, फिर भी मैंने ट्राई किया टू गेट माई हैंड, और आई ट्राइड माई हैंड, मतलब मैंने कोशिश की कि ठीक है मैं एक बार पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ड्राउनिंग मैन विल ऑलवेज क्लच एट अ स्ट्रॉ, मतलब किसी को अगर लग रहा है कि फेलियर है, सक्सेस उससे दूर जा रहा है, देन टू वो ट्राई करेगा कुछ ना कुछ, ताकि एटलीस्ट यू नो एक भले ही 0.01 रिजल्ट मिले बट कुछ तो मिलेगा, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड बी लाइक कि ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते। सो इसी को कहते हैं अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो ये जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रोवर्ब है,
और इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप रोम में हो, ठीक है, आप रोम घूमने गए हो, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो रोमन्स हैं, वो जो भी करते हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे जाते हो, किसी के घर जाते हो, कोई जगह पे जाते हो, या फिर आप कोई दूसरी कंट्री जा रहे हो, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से बिल्कुल जैसा आप हर जगह करते हो वैसे बिहेव नहीं कर सकते। यू रियली नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ, बिकॉज बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर आप अडेप्टेबल हो तो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में जाते हो, वहाँ की तरह जो भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से ढलने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स यू आर अ पर्सन हु हैज़ दैट क्वालिटी ऑफ गेटिंग अडेप्टेड। ठीक है, तो उसी को यहाँ बोला गया है कि भाई रोम जाओ तो रोमन्स की तरह बिहेव किया करो, अपनी तरह बिहेव मत करो। इसका मतलब क्या है, व्हेन विजिटिंग अनदर प्लेस one should follow the customs of the people in that place or behave in an appropriate manner according to how people around you behave. अब ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं, कोई भी प्लेस हो, अगर आप किसी के घर भी जा रहे हो या फिर आप कहीं ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से बिहेव नहीं कर सकते। यू रियली नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, राइट। एक प्रोफेशनलिज्म, एक ऑप्टिमिस्टिक वे, एक तरीका, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। यू शुड गेट अडेप्टेड टू दैट सिचुएशन, तभी तो यू विल बी वेलकम। अदरवाइज पीपल बी लाइक कि आपको पता ही नहीं किस तरीके से बिहेव करना, यू आर नॉट एट ऑल एन अडेप्टेबल पर्सनालिटी। तो वही एक चीज़ दी हुई है कि सपोज अगर आप कोई दूसरी जगह भी जाते हो, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के लोगों के हिसाब से आपको थोड़ा बिहेव करना चाहिए, नहीं तो आप अनवेलकम्ड रहोगे। दिस मीन्स जैसा देश वैसा भेष। नाउ इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएटली क्लियर टू यू, राइट, कि इसका बिल्कुल एग्जैक्ट वही मीनिंग निकल रहा है कि एक तरीके से जो बोल दिया है कि जब रोम में हो तब रोमन्स की तरह बिहेव करो, वैसे ही बोला गया है कि जहाँ पे भी जाओ उसी तरीके से आपको ढल जाना चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, while visiting the country, remember to follow their rules and traditions, as it is well known that when in Rome, do as the Romans do. तो ये चीज़ बोली गई है कि जब भी आप कोई कंट्री विजिट कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू शुड ट्राई टू बिहेव लाइक द पीपल बिहेव देयर, बिकॉज इसी तरीके से ये कहा जाता है, देयर इज अ ग्रेट सेइंग कि जब भी रोम में हो, डू एज द रोमन्स डू। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देते हुए किसी को भी समझा सकते हो कि क्यों आपको कहीं पे भी जाके अडेप्ट होना चाहिए। सो यू कैन यूज दिस इन योर कॉन्वर्जेशंस वेर यू वांट टू एडवाइस समबडी कि भाई कहीं जाते हो तो उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश किया करो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है, यू सून फॉरगेट पीपल और थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर विजिबल और प्रेजेंट। अब ये बहुत इजीली क्लियर हो रहा है। आउट ऑफ साइट यानी साइट मतलब जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी हमारी आंखों से दूर गई चीज, दैट वुड बी आउट ऑफ आवर माइंड ऑल्सो। जो चीजें हमारी सामने नहीं है, जो हमसे दूर है, दिख रही नहीं है बिल्कुल, यानी कि हम कनेक्टेड नहीं है या टच में नहीं है उन चीज़ों के, डेफिनेटली वो हमारे दिमाग से भी धीरे धीरे फेड होने लगती है। सो एक्चुअल मीनिंग में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये सेइंग कह रहा है। तो इसीलिए प्रोवर्ब्स थोड़े इजी हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी इंसान से या कोई भी सिचुएशन से अगर बहुत टाइम से दूर रहते हो तो वो आप भूलने लगते हो उस पर्सन को या उस सिचुएशन को। क्लियर? दिस मीन्स आंख ओझल पहाड़ ओझल। We'll deal with the issue once get complete information of it. For now it is out of sight, out of mind for me. यहाँ पर लिख देते हैं I will, ठीक है, यानी कि मैं बिल्कुल सिचुएशन के साथ डील कर लूंगा जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इस सिचुएशन के टच में नहीं था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। राइट नाउ आई एम व्हाट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि ये जो पूरी सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे देयर इज दिस ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर एक कोई दो लोग काम करते हैं, वन इज राहुल वन इज सूरज। अब सूरज जो है बहुत टाइम से एब्सेंट है बिकॉज ऑफ सम रीजन, मे बी वो सिक थे या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड ऑल, तो वो बहुत टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे हैं ना। राहुल जब वो ऑफिस आते हैं सूरज, तो राहुल उनको बोलते हैं कि ये भाई सिचुएशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको देखो, इसके साथ डील कैसे करना है। अब बिकॉज सूरज बहुत टाइम से दूर थे ऑफिस से, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, तो क्या है भाई, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उनकी आंखों से बहुत टाइम से दूर रही है, सो ही हैज फॉरगॉट अबाउट इट। तो इसीलिए वो सिचुएशन उनके लिए कैसी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो वो यही बोलते हैं कि मैं बिल्कुल डील कर लूंगा विद द इशू, आई विल डील विद द इशू वंस आई गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ इट। क्यों? बिकॉज फॉर नाउ इट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड फॉर मी। क्लियर? तो कभी भी ऐसा कुछ भी होता है कि जहां आपको ये बताना है कि अभी के लिए ये चीज़ मेरे से, मतलब मेरे को पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम से मैं इसके टच में नहीं था, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस प्रोवर्ब। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रिसेप्ट मतलब एक प्रिंसिपल, कि जैसे हम लोगों को बोल देते हैं कि हाँ ऐसा कर लो, हमें ऐसा करना चाहिए, यू शुड बिहेव लाइक दिस, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश विद दैट पर्सन, या आपको ये वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, मतलब ऐसे बता दें, सिर्फ फॉलो ना करें, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सो एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर होता है, यानी अगर मैं सिर्फ आपको बताऊँ बोलती जाऊँ, और यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, वो चीज़ मैं खुद करूँ, अगर आप देखो मुझे कोई भी चीज़ करते हुए, तो फिर डेफिनेटली आप वो फॉलो करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि उपदेश देने से स्वयं उपदेशों पर चलना बेहतर होता है। दैट इफ़ वी काइंड ऑफ गिव लाइक कि हम सीधे
बोल देते हैं, लेक्चर दे देते हैं, या प्रिंसिपल बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे रूल्स हैं, यू मस्ट फॉलो दिस, बट हम खुद फॉलो नहीं करेंगे तो वो सही नहीं है या वो ईजी नहीं होगा फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। बट रादर अगर हम उन खुद ही चीज़ों को या प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे एंड समबडी इज गोइंग टू विटनेस दैट, तो वो डेफिनेटली यूज करेंगे या उसको फॉलो करेंगे। इट इज़ बेटर टू शो समथिंग इन एक्शन देन मियरली एडवाइजिंग अदर्स। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू परफॉर्म दैट थिंग, और वो अगर कोई आपको फॉलो करेगा, कब करेगा फॉलो, जब आपको देखेगा करते हुए। बट रादर आप सिर्फ वो बताते जाओगे, लेक्चर दोगे कि ये प्रिसेप्ट है, ये प्रिंसिपल है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, और आप खुद फॉलो नहीं करोगे तो सामने वाला भी फॉलो नहीं करेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेल समबडी, लाइक समवन इज लाइक हु जस्ट टेल्स यू कैसे ऐसा करना चाहिए बट वो खुद फॉलो नहीं करता, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस प्रोवर्ब इन दैट कॉन्वर्सेशन। डन, ऑलराइट, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। किड्स वोंट लिसन टू यू unless they see you do good things. Example is better than precept आफ्टर ऑल। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि बच्चे वही करते हैं जो घर में देखते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एग्जाम्पल उनके सामने होगा, जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनके सामने, जो भी आप कर रहे हो वही बच्चे फॉलो करेंगे। रादर देन अगर आप बच्चों को बताओगे कि नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, यू नो ऐसा बैठो, ऐसे खड़े हो, आप बोलो, तुम मत बोलो, एवरीथिंग, और आप वही चीज़ें नहीं कर रहे हो तो बच्चे नहीं सीखेंगे। बट यस, अगर आप वो सारी चीज़ें एक्शंस में करके दिखाओगे, यानी कि एक्टिंग करके नहीं दिखाना, यानी आप भी फॉलो कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, देन डेफिनेटली किड्स विल ऑल्सो फॉलो दैट। क्यों? बिकॉज इट्स वेरी यू नो राइटली सेड और इट्स वेरी फेमस दैट एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी endured। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई चीज़ जिसे क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, उसे एंड्योर करना, यानी कि उसको उसके साथ जीना हमें सीखना ला चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट अ प्रॉब्लम यू विल हैव टू लिव विद इट। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम जो आपको पता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली यू नीड टू लिव विद इट। अगर आप डील ही नहीं कर सकते उसके साथ, यू हैव नो सोल्यूशन, यू आर लाइक अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको उसी के साथ जीना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो दिस इज व्हाट इज द सेइंग। हिंदी में से बोलते हैं गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस ढोल, यू नो गले में डाल दिया तो आप उसको प्ले ही करोगे और कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली देयर इज अ सिचुएशन जो आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है, देयर इज नो वे यू कैन क्योर इट, देयर इज नो वे यू कैन डील विद इट, देन डेफिनेटली यू हैव टू लिव विद इट। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर व्हाट डू, कांट एंजॉय माई वर्क बट आई हैव टू कंटिन्यू इट, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। गेस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुछ भी कर लूँ, नो मैटर व्हाट मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कोई भी वर्क को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्या करें, अब कंटिन्यू करना ही पड़ेगा अपनी जॉब के साथ या अपने काम के साथ, बिकॉज इट इज सेड दैट व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन, जो भी स्पीकर इन दिस सेंटेंस, ही इज़ वर्किंग समवेयर, ठीक है, उसको जॉब मिली है बहुत मुश्किल से, बट येस ही इज़ नॉट एबल टू एंजॉय हिज वर्क, उसको काम करने बड़ा बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि वो उसकी चॉइस का नहीं है मे बी, बट बिकॉज कुछ कर भी नहीं सकते, ना तो कोई दूसरी जॉब है, ना ही इस जॉब में जाके कुछ ऐसा कर सकते कि नहीं मुझे काम नहीं करना, दूसरा काम दे दो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन, बट येस वो उसको क्योर नहीं कर सकता, हील नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू लिव विद इट, सो ही हैज़ टू कंटिन्यू हिज जॉब बिकॉज व्हाट कांट बी क्योर्ड हैज़ टू बी इंड्योर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर। आई गेस ये तो पढ़ते से ही समझ जाएगा कि कभी भी कुछ भी अच्छा करो, डू गुड। कास्ट मतलब टू थ्रो फोर्सफुली समथिंग, ठीक है, कोई बहुत जोर से फेंकना किसी चीज़ को, उसको कास्ट कहते हैं। सो डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, कुछ भी अच्छा करो और उसको सीधे सीधे रिवर में, नदी में बहुत जोर से फेंक दो। इसका मतलब क्या हुआ कि वेन एवर यू डू समथिंग गुड, उसको ऐसा करना चाहिए आपको कि आप उसको फेंक दो रिवर में, यानी वो कभी नहीं मिलेगा वापस, राइट। तो आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसकी मदद की, या फोटो खिंचा रहे हो कुछ दान देते हुए, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रादर देन यू शुड फॉलो नेकी कर दरिया में डाल। ना हिंदी में हमने बहुत सुना है इसको, राइट। इसी को हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं, डू गुड, अच्छा करो, भला करो, कुछ भी अच्छा काम करो, यू शुड थ्रो दैट इन टू द रिवर रादर देन जस्ट काइंड ऑफ यू नो बोस्टिंग योर सेल्फ, या फिर सबको बताना कि मैंने इसकी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की, मैंने दान दिया। क्लियर? सो इफ़ यू डू समथिंग फॉर समवन, डोंट एक्सपेक्ट बैक फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली। इसका एक और अच्छा मतलब ये भी है कि जब भी आप किसी के लिए अच्छा करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करो कि मेरे लिए भी ये पर्सन कभी ना कभी अच्छा करेगा या मुझे भी कुछ अच्छा मिलेगा इसके बदले में, नहीं। यू शुड ऑलवेज डू दिस, आपने कुछ अच्छा किया और भूल जाओ उसको,
यानी उससे कभी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा, उसको ही कहते हैं ये प्रोवर्ब, दैट इज डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर. फॉर एग्जांपल, राम हेल्प्ड हिज नेबर इन हिज रफ टाइम्स बट नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न एज ही ट्रूली बिलीव्स दैट वन शुड डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर. फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस पर्सन राम, जिसके नेबर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई सिचुएशन थी, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने नेबर की हेल्प की, बट उसके रिटर्न में, उसके बदले में कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे इस चीज़ से कि हमेशा कुछ भी अच्छा करो तो उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. यू शुड रादर कास्ट दैट इनटू द रिवर. सो इस तरीके से आपने इस प्रोवर्ब को सेंटेंस में या फिर अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हेल्प समबडी और देन योर पर्सन इज लाइक, यार उसने इतनी हेल्प, तुमने उसकी इतनी हेल्प करी, दैट पर्सन वुड ऑल्सो हेल्प यू, आई गेस. तो यू शुड बी लाइक, नो, आई टोटली बिलीव दैट वी शुड डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल. यानी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मैनी अ लिटिल, मेक्स बनाती है, मिकल मतलब लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट बनाती है. इसका मतलब क्या हुआ? मैनी स्मॉल अमाउंट्स अक्यूमुलेट टू मेक अ लार्ज अमाउंट. छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो उसी से कुछ बड़ा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस पॉट, घड़ा मटका जो भी बोलते हैं हम, उसमें अगर आप धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके पानी डालोगे, क्या होगा? कुछ समय बाद क्या होगा? वो धीरे धीरे जो ड्रॉप्स हैं वो टोटली कंप्लीट एक पानी में, मतलब बहुत ज़्यादा पानी में चेंज हो जाएंगी. इसका मतलब जो ये पॉट है, जो भी मटका है, इट वुड बी फिल्ड विद दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर. सिमिलरली आप जो भी छोटी 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 चीज़ें करते हो लाइफ में, समवेयर वो बहुत बड़ी चीज़ में चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरी पर्सन स्टार्ट्स प्लांटिंग वन ट्री एवरी मंथ, सून देयर विल बी ट्रीज एवरीवेयर एज मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हर एक इंसान, लाइक एवरीबडी जो भी है लिविंग ऑन दिस प्लानट अर्थ, अगर वो स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ एक ट्री प्लांट करना एवरी मंथ, यानी हर कोई एक सीड प्लांट करके आ जाता है हर महीने, एवरीबडी, तो कर क्या रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है. मतलब हमारे लिए एक पेड़ लगाना इज नॉट अ बिग थिंग, राइट? बट उससे हो क्या रहा है? सब एक एक पेड़ लगा रहे हैं. बहुत टाइम बाद क्या होगा? बहुत सारे पेड़ या हर जगह ग्रीनरी होगी, कोई भी पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी. देयर वुड बी लाइक परफेक्ट रेनफॉल. तो इस तरीके से किया क्या? छोटी छोटी चीज़ें की, राइट? एक छोटी सी स्टेप ली. हमारे लिए क्या था? एक पेड़ लगाना. सिमिलरली सबने ये किया, बट वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एक बड़ा सा रिजल्ट क्या मिला कि हर जगह पेड़ है, एवरीवेयर देयर आर trees. So this is how you kind of can understand the meaning of this proverb, and you can also use this in your conversations. That is, many a little makes a mickle. Done? All right. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट. यानी वेयर आउट का मतलब होता है थक जाना, टू गेट टायर्ड, और रस्ट आउट मतलब कि भाई यूजलेस हो गया, राइट? जंग लग गई. तो यहाँ पर अगर हम इसका मीनिंग इस प्रोवर्ब से समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं, उससे अगर हम थक जाते हैं, इफ यू गेट टायर्ड, इट्स बेटर रादर देन कि हम ऑब्वियसली रस्ट आउट कब होंगे? जब कुछ नहीं करेंगे. तो रादर देन सिटिंग आइडियल. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ सब, ज़्यादातर इसको ओल्ड एज के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, देर आर सर्टेन पीपल, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बट यस देर आर पीपल जो ऐसा बिलीव करते हैं कि अब एज हो रही है तो क्या करें, मतलब वी शुड जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड डू नथिंग. तो वो क्या हो रहा है? दे आर सिटिंग आइडियल एंड दे आर बिकमिंग यूजलेस डे बाय डे. मे बी ऐसा हो सकता है कि फिर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएँ. बट येस, अगर आप एक्टिव रहते हो, वेदर कितनी भी एज हो, आप अपने छोटे मोटे काम करते रहते हो, और उससे भले ही आप ऑब्वियसली एज है तो थक जाओगे थोड़ा बहुत, इट इज़ ओके, रादर देन कि आप बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे हो. क्लियर? तो इसे ज़्यादातर ओल्ड एज के लिए यूज़ किया जाता है. इट मीन्स इट इज़ बेटर टू रिमेन एक्टिव एंड वेयर आउट. इट इज़ बेटर टू रिमेन एक्टिव, टू कीप ऑन वर्किंग, टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड देन गेटिंग टायर्ड ऑफ इट, अंटिल, टायर्ड बिकॉज ऑफ इट, नहीं बोलना चाहिए, टायर्ड ऑफ इट यानी उस वजह से परेशान हो गए, मतलब उससे हम बोर हो गए. गेटिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ इट यानी कि आप उसकी वजह से थक जाओ. एंड अंटिल यू डाई, ऑब्वियसली ओल्ड एज की बात हो रही है तो मैं भी बता रही हूँ, मतलब जब तक आप हो, like the time till you are living, you should keep on working than to do nothing just because you are old. rather than doing nothing कि भाई old है, कुछ नहीं करें, बैठे रहते हैं, not performing any action, वो बिल्कुल सही नहीं है. you should keep on working and whether you are getting tired because of it, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? सो इसका मतलब होता है बेकार से बेगार भली. सो माई ग्रैंड मदर कैन नॉट वॉक मच बट शी कीप्स डूइंग ऑल द हाउस वर्क हर सेल्फ बिकॉज शी बिलीव्स दैट इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट. तो यहाँ पे एक सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रैंड मदर है या कोई भी ऐसे हम एक
पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि किसी की दादी जी हैं या कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज है, वो बिलीव करते हैं कि भाई काम करते रहना चाहिए, मतलब अपनी छोटी मोटी जो अपनी खुद की चीज़ें हैं, जैसे कुछ उठा के रख देना, खुद के लिए पानी ले आना एंड एवरीथिंग, वो करना खुद पसंद करते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलीव कि भाई ज़्यादा बेटर होगा टू डू समथिंग एंड बिकम टायर्ड रादर देन जस्ट सिट आइडियल एंड डू नथिंग। तो इस तरीके से आप इस प्रोवर्ब को यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट इज दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट इज मेंट बाय दिस प्रोवर्ब, जनरली ओल्ड एज के लिए यूज किया जाता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मैन प्रोसेस गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोशिश करते हैं, हम प्लान्स बनाते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट एग्जैक्टली होता वही है जो भगवान ने हमारे लिए प्लान किया है, जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली सुना हुआ प्रोवर्ब है आई गेस, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब है होई है सोई जो राम रची राखा। अब इतने टिपिकल वे में हम नहीं सोचते हैं इसको, इसका एक्चुअली यही बोलते हैं इसको, बट हम ऐसे ही सुनते हैं ना कि होगा तो वही जो भगवान चाहते हैं, भगवान की जो मर्जी होगी, राइट। तो यही होता है मीनिंग इस प्रोवर्ब का, दैट इज people can make plans, we as human beings can create plans, we can like decide कि हाँ ऐसा ऐसा कर लेते हैं, but God determines how things will turn out, but it is God, भगवान है जो कि डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट क्या होगा एंड ऑल। अब इसका मतलब ये नहीं कि वी जस्ट सिट लाइक कि हाँ भाई जो होना है वो होके रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वी शुड ट्राई वर्क डूइंग समथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली गॉड हेल्प्स दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हेल्प्स देमसेल्व्स, राइट। तो जो खुद की मदद करते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करो, बिकॉज हाँ पता है कि हम कुछ भी प्लान कर ले, होना तो वही है जो भगवान चाहते हैं, नहीं। इट मीन्स दैट वट एवर यू ट्राई टू डू, लाइक वट एवर प्लान यू हैव, आपने जो कुछ भी सोचा कि हाँ ऐसे से करूंगा या फिर मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट येस, अगर उसके बाद कभी रिजल्ट कुछ नेगेटिव आ जाता है या फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, मैं करूंगा ही नहीं। यू शुड बी पॉजिटिव, लाइक ठीक है भगवान की मर्जी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रोवर्ब को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन माई बेस्ट टू द प्रोजेक्ट, नाउ इट्स अप टू फेट, यानी किस्मत, वेदर थिंग्स वर्क आउट फॉर मी और नॉट, एज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब कि मैंने अपना बेस्ट दिया है अपने प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोई दो लोग हैं, ठीक है, अब इन लोग की बातचीत चल रही है कि क्या किया तुमने, ऐसा वैसा, अब क्या होगा, रिजल्ट कैसा निकलेगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसे करके डिस्कशन चल रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अपना 100% दिया है, जितना मैं कर सकता था, थोड़ा भी आलस नहीं दिखाया, अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। अब ये डिपेंड करता है किस्मत पे कि भाई मेरा रिजल्ट कैसा निकलता है, अच्छा निकलता है कि नहीं, मैं पास होता हूँ कि नहीं होता हूँ, पास तो नहीं बोलना चाहिए, सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं होता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है, या ये कहावत है दैट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि मैंने तो अपना पूरा 100% दिया, मैंने पूरा प्लान किया, एक्शन परफॉर्म किया, बट होना तो वही है जो भगवान को सही लगेगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज wolves may lose their teeth but not their nature, यानी जो वुल्व्स होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, अगर उनके दांत चले जाएं, ऑब्वियसली वो शिकार नहीं कर पाएंगे, राइट। भले ही उनके दांत निकल जाएं, फिर भी वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इफ दे हैव टू अटैक दे वुड अटैक। इसका मतलब कोई भी पर्सन जो होता है वो वैसा ही रहता है जैसा वो है, मतलब मे भी उसकी हमें लगने लगे उसके बिहेवियर से या कुछ की हाँ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं या फिर वो ऐसा नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं ये माना जाता है दैट चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, कि इफ़ देयर इज़ अ थीफ, ठीक है, कोई चोर है वो चोरी कर लेता है, अब यहाँ पर चोर लिख देता है, ठीक है, यानी कि कोई चोर है, कोई थीफ है, भले ही वो चोरी वगैरह कर लेता है, उसने धीरे धीरे छोड़ दी चोरी करना, बट येस थोड़े बहुत जो ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी बहुत चीटिंग जो होती है वो करते रहते हैं। इसका मतलब अगर कोई पर्सन गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, भले ही वो उतना बड़ा गलत करना छोड़ दे, बट छोटी मोटी चीटिंग तो वो करता ही रहता है। ये चीज़ सिखाने के लिए, एडवाइस देने के लिए होती है, ताकि आप बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव ना करो किसी पे। सो वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर नो मैटर हाउ मच टाइम पासेस, यानी कि कितना भी वक्त बीत जाए या कितना भी किसी को समझा लो, एक पर्सन का जो नेचर रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाता है वैसा ही, भले वो कितनी भी कोशिश करे चेंज करने की, बट कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा नेचर जो है वैसा का वैसा रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर राम वॉज कॉट फॉर द स्कैम, he left a lot of bad habits, but still he is involved in small wrongdoings. He has proved that wolves may lose their teeth but not their nature. क्या यहाँ पे यूज हो रहा है कि जैसे ही राम को एक स्कैम में पकड़ा गया, वो स्कैम मतलब बहुत बड़ा घोटाला, ठीक है, तो स्कैम घोटाले को हम बोलते हैं इन इंग्लिश स्कैम। तो राम कोई पर्सन है, ठीक है, वो जैसे ही कॉट हुए थे या उनको पकड़ लिया गया था किसी स्कैम में या किसी घोटाले में, तो उन्होंने बड़े जो ये भी
एक्शंस होते हैं, अब जो भी बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स थी वो सब छोड़ दी, बट अभी भी वो छोटी मोटी रॉन्ग डूइंग्स में इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वुल्व्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर, यानी कि राम यानी चोर चोरी से जाए बट हेरा फेरी से ना जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं या फिर हम इस प्रोवर्ब से ये बोलना चाह रहे हैं कि कभी कोई पर्सन चेंज ही नहीं हो सकता, नहीं, ये सॉर्ट ऑफ एक एडवाइस देने के लिए होता है, क्योंकि लाइफ में ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, सो इट शुड बी लाइक हम थोड़ा अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि हाँ ठीक है अभी पर्सन ने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ भी गलत ये पर्सन कर सकता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, यानी कि अगर आपने कुछ भी रिस्क लेके नहीं किया, यानी थोड़ा बहुत रिस्क हो जिसमें अगर आपने वो नहीं किया तो आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा, नथिंग गेन। यानी हम बोलते हैं ना कि अरे हर चीज़ में रिस्क तो थोड़ा बहुत होता ही है, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके थोड़े स्केप्टिकल हो, डाउटफुल हो, इन डिलेमा हो कि इस चीज़ को करूँ या नहीं करूँ, देन डेफिनेटली यू कैन बी लाइक कि आपको हर कोई एडवाइस देता है कि यार हर काम में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, और रिस्क नहीं लिया तो क्या किया। तो इस तरीके से हम ये प्रोवर्ब यूज करते हैं, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, विच मीन्स बिना खतरे लाभ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसके पहले मीनिंग देख लेते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट टू अचीव एनीथिंग इफ यू नेवर टेक एनी रिस्क। इसका मतलब अगर जनरली आपका एटीट्यूड ये होता है कि आप डरते हो हमेशा रिस्क लेने से कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर इसमें मैं हार गया तो इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट मिलना मुश्किल है। तो अगर आप जब तक रेडी नहीं हो टू टेक रिस्क इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू कैन नॉट गेन अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ रिस्क टू लीव द जॉब and work on a startup, but nothing ventured nothing gained. For example, there is this person जिसको अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद का एक नया आइडिया को उस पर वर्क करना है, बट ही वॉज वर्किंग समवेयर एंड ही इज़ लाइक कि मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी, देन ओनली आई कैन वर्क ऑन माई स्टार्टअप और आई कैन जस्ट वर्क ऑन माई आइडिया। सो हेयर देर इज़ अ वेरी बिग रिस्क इन्वॉल्व, राइट। वॉट इफ वो जॉब छोड़ दे और उसका स्टार्टअप काम ना करे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बट इफ वो नहीं भी करता है स्टार्टअप स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह जाएगा कि क्यों नहीं कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं वो खुश नहीं रहेगा अपनी जॉब में, बिकॉज ऑलवेज उसका ध्यान अपने आइडिया, अपने स्टार्टअप पे रहेगा। सो ऑब्वियसली ही हैज़ टू डिसाइड, लाइक ही हैज़ टू वर्क ऑन इट, कि वो काम का है कि नहीं। ऐसे सीधे जंप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, या ये बोला जा रहा है अगर आपको कोई चीज़ करनी है और आपको लग रहा है जस्ट बिकॉज आप रिस्क की वजह से रुके हुए हो, देन डेफिनेटली ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि भले ही वो रिस्क था, इट वॉज अ रिस्क टू लीव अ जॉब, बट ऐसा था कि भाई नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो फिर मुझे थोड़ा बहुत भी, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लेता या वो खुशी होती या अपने आइडिया के बारे में थोड़ा बहुत जान पाता, ऑब्वियसली ही कैन गेट अ न्यू जॉब, बट वो जो स्टार्टअप करने का जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं अगर वो छोड़ देता तो दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग जो कि थोड़ा रिग्रेटिंग होता लेटर। सो दिस इज समथिंग विच इज मेंट बाय द प्रोवर्ब नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, कि अगर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको कुछ मिलने भी नहीं वाला। डन, ऑल राइट। Now this does not means that you have to take a big risk. I hope आपको इसका लिटरल मीनिंग समझ आ रहा है कि अगर कोई चीज़ करने जा रहे हो और उसमें आपको लगता है कि रिस्क की वजह से आप रुके हो, सिर्फ बाकी सब कुछ अच्छा ही आप कर सकते हो, देन डेफिनेटली आपको चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये रिस्क लूंगा तो हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिले, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एवरी टाइड हैज इट्स एब, ही हु राइजेस मस्ट फॉल। क्या मतलब है यहाँ पर कि भाई जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई बड़ी सिचुएशन आ जाती है डिफ़िकल्ट लाइफ में, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक चीज़ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाला पॉइंट होता ही होता है, राइट। जैसे अगर कोई टाइड आता है तो टाइड भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी होगा तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी होगा, यानी जो चीज़ ऊपर जाती है, उछलती है, जो राइस होती है वो गिरती भी है। इफ़ आई एम गोइंग टू थ्रो दिस स्टाइलस दिस पेन ओ लाइक ऐसे ऊपर फेंकूं मैं, ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू कम डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। इसका मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है लाइफ में तो आपकी बहुत अच्छी सिचुएशन भी आएगी लाइफ में, और अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कभी आप छोटी मोटी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं देखोगे। तो इसका मतलब होता है हर उन्नति के उपरांत अवनति, दैट मीन्स एवरीथिंग विच इज देयर ऑन दिस अर्थ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स। हर एक चीज़ की बहुत अच्छी हाईएस्ट पॉइंट अप्स, यानी सब अच्छा, और एक डाउन पॉइंट भी होता है कि जब सब चीज़ें खराब होने लगती हैं या फिर बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं हो लाइफ में। सो दिस इज समथिंग जो कि एडवाइस देने के लिए दिया जाता है प्रोवर्ब कि यू शुड रिमेन पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन यू आर इन। ही हैज सीन सम टफ डेज बट एवरीथिंग विल बी फाइन सून, एज एवरी टाइड हैज इट्स एब, ही हु राइजेस मस्ट फॉल।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन दिस ही, ठीक है, और उसकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं, देन डेफिनेटली उसको आप बोल सकते हो टू गिव एन एडवाइस कि भाई हर एक चीज़ का एक यू नो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, एवरीथिंग विच राइजेस हैज़ अ फॉल। क्यों? बिकॉज अभी ये सिचुएशन खराब है, टफ है, बट डोंट वरी, सब कुछ चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ एक ये बहुत ही पॉजिटिव एक ऑप्टिमिस्टिक सा प्रोवर्ब है जो आप यूज कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज बेगर्स कांट बी चूजर्स। फॉर एग्जाम्पल अब इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या मतलब है कि भाई जो बेग करते हैं यानी कि जो चीज़ें मांग रहे हैं, लाइक कि उनको कुछ चाहिए, तो वो चूज नहीं कर सकते कि आप मुझे यही दो, नहीं, बिकॉज यू आर लाइक आस्किंग फॉर समथिंग फॉर फ्री कह सकते हो, या फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं, बिकॉज यू आर अ बेगर। तो इसका मतलब होता है पीपल विथ नो अदर ऑप्शंस मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट इज ऑफर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जाते हो, देयर इज दिस पर्सन जो बेगर है, ठीक है, और वो मांग रहे हैं आपसे कुछ, तो ही कांट टेल यू कि मुझे 10 रुपये चाहिए, या मुझे आप 50 रुपये दो, या फिर मुझे ये नोट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? ही कैन नॉट बी अ चूजर, ही हैज टू बी कंटेंट, satisfied in whatever you will give to that person, right? Similarly, अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है तो फिर जो मिला है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। अगर उसको चीज़ को हम क्रिब करते रहेंगे, रोते रहेंगे कि अरे ये क्या मिल गया, ये तो अच्छा नहीं एंड ऑल, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो मिला है वो भी नहीं, उसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, बाकी तो कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब दान की बच्चियां के दांत नहीं गिने जाते। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस हॉस्टल वी आर ओनली गोइंग टू गेट दीज मेनी ऑप्शंस फॉर डिनर, वी हैव टू लर्न टू लिव इट बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्टल में रहते हो, कोई पीजी वीजी में रहते हो, पता ही है भाई घर के खाने के लिए बात ही अलग होती है, बट पीजी में, हॉस्टल में, वट एवर वी गेट इज नॉट लाइक वेरी टेस्टी और समथिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आप हॉस्टल में हो तो भाई यही ऑप्शंस मिलेंगे डिनर वगैरह में। आप जैसे डिस्कशन कर रहे हो, आप लोग फ्रेंड्स वगैरह हो, आप लोग डिस्कस कर रहे हो हॉस्टल में बैठ के कि हम ये खा सकते हैं, यार काश ये होता खाने के लिए, मैं नहीं खाता हूँ, मुझे तो ये मिलता था घर पे खाने के लिए। नहीं, यू कांट डू दैट। क्यों? क्योंकि हॉस्टल में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, आपको जो मिलता है आपको वो खाना ही पड़ेगा। सो यू रियली नीड टू बी लाइक satisfied with it, you have to live with that। क्यों? Because beggars can't be choosers। तो इस तरीके से आप इस सिचुएशन या ऐसी कोई भी सिचुएशन में इस प्रोवर्ब को यूज कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस, यानी कि जो खाली बर्तन होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इसका मतलब थोता चना बाजे घना, विच मीन्स कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज कम होता है, जिन्हें कोई आइडिया नहीं होता, वही सबसे ज़्यादा अपने एडवाइजेस देने लगते हैं या बताने लगते हैं, और ये प्रूफ करता है ये प्रोवर्ब। इट मीन्स पीपल हु नो नथिंग मेक लॉट ऑफ नॉइज टू साउंड वेरी नॉलेजेबल। अगर किसी को बहुत कुछ आता है ना, तो वो थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ धीरे धीरे अपनी एडवाइस देते हैं। ऐसे हमेशा बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं करते कि अरे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। बट जिस पर्सन के पास कम नॉलेज होता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा आके अपने आप आगे आके अपनी एडवाइस देता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश हैज़ नेवर बीन टू लंडन बट ही टेल्स अबाउट इट लाइक ही इज एन एक्सपर्ट, ही प्रूव्स दैट एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस पर्सन रमेश जो कि कभी लंदन नहीं गया है, बट अगर उसके सामने कभी भी बात निकलती तो वो इस तरीके से एडवाइस देता है, अरे वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो ये करना, ऐसे जाना, वैसे जाना। वो इस तरीके से एडवाइस देता है जो कि प्रूव करता है कि क्या है भाई, वो एम्प्टी वेसल्स जो है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ही काइंड्स ऑफ टॉक्स लाइक ही इज एन एक्सपर्ट बट ही हैज़ नेवर बीन टू दैट प्लेस, यानी कि नॉलेज बिल्कुल नहीं है या थोड़ा बहुत है, बट इस तरीके से बात करना जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत कुछ आता है आपको, उसके लिए आप या उस पर्सन के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये प्रोवर्ब, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ गुड माइंड इज गुड फाइंड। A person wearing an optimistic view of life would discover positives out of negatives। जनरली भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ आ रहा है, a good mind is good find, यानी अगर आपका मन अच्छा है, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव हो सोचने में, तो आपको हर एक चीज़ अच्छी ही दिखेगी, या फिर आप किस गलत चीज़ में या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कुछ अच्छा निकाल लोगे या अच्छा देख लोगे। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी बोल सकते हो किसी की होती है, तो हम ये प्रोवर्ब एप्लीकेबल कर सकते हैं उस पर्सन पे कि जब भी आप कोई ऑप्टिमिस्टिक व्यू पहन के बैठे हो, यानी कि आपके हमेशा लाइफ में आप कोशिश करते हो पॉजिटिव ढूंढने की, अच्छी चीज़ें देखने की, तो आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई टफ सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लोगे, और फिर आप पे ये प्रोवर्ब एप्लीकेबल होता है, अ गुड माइंड इज गुड फाइंड, which means in Hindi is आप भले तो जग भला। If you are good, then for you everybody is good. For you it will be like कि हाँ इसमें भी कुछ अच्छा ही है, इस सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ही है। For example, राम is very honest and considers every person honest as a good mind is good find। तो राम बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, तो उसको लगता है कि हर कोई जो भी उसके सामने पर्सन है वो भी ऑनेस्ट ही होगा, बिकॉज ही हैज़ अ गुड माइंड, वो बहुत अच्छी सोच है उसकी, सब कुछ अच्छा ही उसको दिखता है, तो वो हर एक इंसान को अच्छा ही कंसिडर करता है। अ गुड माइंड इज गुड find। Done, all right।
नेक्स्ट प्रोवर्ब इज अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। बहुत ज़्यादा धुंध है, फॉग है, ठीक है, और आप एक पंखा चला दो तो उससे क्या पूरा फॉग हट जाएगा? नहीं, बिकॉज फॉग क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। फैन का काम क्या होगा? इत्तू सा। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है तो उसके लिए अगर आप थोड़े बहुत ही एफर्ट लगाओगे, छोटी मोटी चीज़ें करोगे तो उससे वो सॉल्व हो जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। सो अ बिगर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय स्मॉल एंड मीनिंगलेस एक्ट्स, ठीक है, यानी कि अगर आपको पूरा समुद्र खाली करना है और आप एक एक कटोरी से पानी निकाल रहे हो तो खाली होगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से ही बोला जा रहा है कि एक फॉग है, अगर बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई और आप एक छोटा सा पंखा चला दो तो उससे वो पूरी धुंध हट जाए, फॉग हट जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू लाइक मेक बिगर एफर्ट्स। अगर आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो छोटे मीनिंगलेस एक्ट्स, वर्थलेस बिल्कुल कोई चीज़ें करोगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ओस चाटने से प्याज नहीं बुझती, यानी कि इफ़ यू आर लाइक थर्स्टी, और जो ओस की बूंद होती है इतनी छोटी सी ड्रॉप, अगर आप उसको लिक कर लोगे तो क्या आपकी बिल्कुल आपको थर्स्टी नहीं फील करोगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इसी तरीके से इसको हिंदी में यूज किया जाता है और दोनों को ही बहुत इजीली आप समझ सकते हो, बहुत ही अच्छे से लिटिल मीनिंग एक्सप्लेन हो रहा है। सो राजेश इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स बट ही इज मेकिंग स्मॉल एफर्ट्स टू डील विद इट। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। कैसे यूज कर सकते हो इसको? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, कोई राजेश है, ठीक है, अब उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, बट कर क्या रहा है? उसको ठीक करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए उसे छोटे मोटे एफर्ट्स लगा रहा है, छोटी मोटी कोशिशें कर रहा है। अब उन छोटी मोटी कोशिशों से उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और एफर्ट्स क्या है? बहुत छोटी छोटी वो कोशिशें कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द प्रोवर्ब दैट अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन, दैट इज इफ ही हैज टू डील विथ हिज प्रॉब्लम्स ही रियली नीड्स टू मेक बिग एफर्ट्स, या फिर उसको कुछ बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी सिचुएशन का हल नहीं निकलेगा। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। बहुत इजी, बहुत कॉमन प्रोवर्ब, राइट। अब ये आप बहुत इजीली अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज कर सकते हो, बहुत सिचुएशंस मिलेंगी आपको ये यूज करने की जहां हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अच्छी चीजें सिर्फ उनके साथ होती हैं, उनके पास आती हैं जो वेट करते हैं, जिनमें पेशेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्टूडेंट है या आप हो, आप किसी एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब आपने 1 साल दिया एंट्रेंस, अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाए या कुछ मार्क्स से रह गए, नाउ इट इज अप टू यू। आप वहीं गिव अप करना चाहते हो कि अब रहने दो, अब तो होना ही नहीं है, मेरे लिए बना ही नहीं है, राइट, या फिर आपको ऐसा है कि नहीं, ये मेरा ड्रीम है, मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मैं इस बार एक और बार चांस देता हूँ, एक और बार कोशिश करता हूँ, एंड डेफिनेटली देन यू क्रैक इट, ठीक है। और दूसरी जगह वहीं पर ऐसा है कि आपका ड्रीम है टू बिकम अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया नीट का एग्जाम, यू कुड नॉट क्लियर इट बिकॉज ऑफ 2 to 3 मार्क्स, आप उसकी वजह से रह गए, एंड देन यू आर लाइक रहने दो, मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं, मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा वैसा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ अच्छा, इसके लिए बना ही नहीं हूँ, एंड यू लीव इट, एंड देन सडनली आप किसी और चीज़ में लग जाते हो और आप उसके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, तो ऑब्वियसली आपने एग्जाम दिया ही नहीं, तो यू कैन नॉट क्रैक इट। बट येस, इफ विथ फुल डिटर्मिनेशन, फुल फोकस, अगर आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो देन डेफिनेटली यू गेट दी रिजल्ट। यानी अगर आप में पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो कि नहीं, भले कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, मैं कोशिश करूंगा तो मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, डेफिनेटली विल सी द रिजल्ट्स। क्लियर? सो इसका मतलब है बीइंग पेशेंट इज अ गुड क्वालिटी टू हैव, एंड इफ यू हैव द पेशेंस टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवेंचुअली समथिंग गुड विल कम टू यू। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि कोई चीज़ नहीं मिल रही तो बस बैठे रहता हूँ, हाँ अगले साल तो हो ही जाएगा। नहीं, इसका मतलब होता है अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, यानी आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं हुआ, और आप में अगर पेशेंस है, धीरज है, और आप और एफर्ट्स लगा के आप उस चीज़ के पीछे लगे हुए और आपको है कि नहीं हो ही जाएगा इस बार तो, और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, और आप कर भी रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी को कहते हैं गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। या फिर कुछ ऐसा है जो कोई रिजल्ट आने वाला है, या फिर आप वेट कर रहे हो कि अब यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस होंगी और आप 1 साल वेट किया या कुछ महीने वेट किया, नहीं आई, तो आप अगर गिव अप कर देते हो तो कुछ नहीं मिलने वाला। बट यस, इफ यू कैन वेट फॉर इट, कि नहीं थोड़ा टाइम और वेट कर लेता हूँ, अरे होगा, बिल्कुल होगा, अगर आप पॉजिटिव हो कह सकते हो उससे रिलेटेड, देन डेफिनेटली यहाँ पर ये प्रोवर्ब फिट बैठता है दैट गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। इसे हिंदी में बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है। वेरी कॉमनली हर्ड प्रोवर्ब है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लाइक मॉम डैड, हमारे दादा दादी बहुत ज़्यादा हमें बताते हैं कि सब्र रखो भाई, सब्र का फल मीठा होता है। क्लियर? सो चारू वर्कड वेरी हार्ड विदाउट गिविंग अप फॉर 3 years एंड शी क्लियर्ड हर एंट्रेंस एग्जाम। दिस शोज दैट गुड थिंग्स कम टू दोज
who wait. तो चारू जो उसने गिव अप नहीं किया 3 साल तक शी बस यहाँ पे ऐसे ही मैंने रख दिया है 3 साल, और ऐसे सच में स्टोरीज हैं जिन लोगों ने 4-4 5-5 साल लगाए हैं अपनी लाइफ के किसी भी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, फाइनली दे डिड इट, ठीक है, क्योंकि उनका वो ड्रीम रहता है. सो इट इज़ नॉट लाइक आपको पता है बने ही नहीं हो, आपसे हो मतलब कोई चीज़ है जो आपसे नहीं हुई, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी लगे रहना तो रिजल्ट मिलेगा नहीं. बट येस, अगर आप 100% एफर्ट्स देते हो, फोकस्ड हो, डिटर्मिन्ड हो, वेट कर सकते हो, पेशेंस है, देन डेफिनेटली यू विल गेट दी रिजल्ट. सो चारू क्या है भी, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिलिजेंट, और वो कोशिश कर रही है, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, बट तीसरी बार तक हो गया. क्यों? क्योंकि उसने अपना पेशेंस रखा. शी डिड हर बेस्ट फॉर 3 years, शी डिड नॉट गिव अप, और इसीलिए शी कुड क्लियर हर एंट्रेंस एग्जाम. तो ये प्रूव करता है दैट गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. बहुत ही ज़्यादा अनदर कॉमन प्रोवर्ब, और इसको भी आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो. इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हुई, बट येस जो एंड रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो बड़ा प्लेजेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला आपको. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई, कुछ भी प्रॉब्लम आई, बट फाइनली जो रिजल्ट था वो बड़ा पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था. तो इसका मतलब भली शुरुआत कैसी भी हुई हो, बट एंड तो अच्छी हुई ना, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स. सो ऑल्स वेल, सब कुछ ठीक होता है, दैट एंड्स वेल, जो कि खत्म अच्छे से हो जाता है. सो अ पर्सन कैन फॉरगेट अबाउट हाउ अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट समथिंग वाज बिकॉज एवरीथिंग एंडेड इन अ गुड वे. यानी कि अगर कोई चीज़ बड़ी अनप्लेजेंट वे में स्टार्ट हुई, या चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसअप होती गई, बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो गई चीज़ें, बट फाइनली जो एंड रिजल्ट था बड़ा प्लेजेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही था. तो इसका मतलब भले चीज़ें कैसी भी स्टार्ट हुई, बट भाई सब कुछ ठीक है अगर वो खत्म ठीक से हुआ. सो अंत भला तो सब भला इज अगेन जो आपने बहुत बार सुना हुआ होगा. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. द टीम लीडर वाज लेट फॉर द मीटिंग बट एवरीथिंग वर्कड आउट ऑल राइट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस मीटिंग, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्लाइंट्स आए हुए हैं, और आपकी टीम के जो लीडर हैं वही स्टार्ट करने वाले थे मीटिंग, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ की वजह से ही कुड नॉट कम ऑन टाइम, और बहुत ज़्यादा लेट हो गए वो. तो आपने एज अ टीम, आपको ऑब्वियसली दिखा कि बहुत मैसअप हो गई चीज़ें, स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हुई, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा, लेट हो गए, ठीक है, टाइम की वैल्यू नहीं हुई, पंक्चुअल नहीं प्रूफ हुए आप, बट आपने कोशिश की कि नई चीज़ों को थोड़ा अपने हाथ से करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी ठीक करने की. तो आप लोगों ने भली मेस्ड अप चीज़ें थी, धीरे धीरे मीटिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, फाइनली क्लाइंट सेड यस कि हाँ वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विथ यू बिकॉज आपका आइडिया बड़ा अच्छा है. तो इससे क्या हुआ, चीज़ें स्टार्ट बड़ी अजीब हुई, गड़बड़ होती गई सब कुछ, बट फाइनली रिजल्ट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्लेजेंट. तो इसीलिए ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एवरी मैन थिंक्स हिज ओन गीज स्वान्स. गीज और स्वान में एक छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डीप में ही जाएंगे. गीज और स्वान में डिफरेंस होता है कि स्वान थोड़ी बड़ी होती हैं गीज से, ठीक है. यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हर किसी को अपनी चीज़ या अपना कुछ भी बात या अपना कोई भी पर्सन जो भी है वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि भाई मेरा है तो ये बेस्ट होगा. क्लियर? सो यहाँ पे वही बोला है कि हर किसी को अपनी गीज जो है वो स्वान यानी कि बड़ी लगती है. एवरीवन टेंड्स टू रेट देयर ओन थिंग्स, पीपल एंड अचीवमेंट्स मोर हाईली देन अदर्स डू. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, जितनी तारीफ बाहर के लोग नहीं करते हैं आपकी चीज़ की, आप उससे ज़्यादा उसकी तारीफ करते हो. क्यों? बिकॉज दैट बिलोंग्स टू यू. तो इस तरीके से हमेशा क्या होता है कि लोग को हमेशा अपनी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेटर ही लगती है, भले सामने वालों को लगे या ना लगे. दिस मीन्स इन हिंदी अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई सेलर है, कोई कर्ड सेलर है, दही बेचता है, डेयरी है, और वहाँ अगर आप जाओ, 2 शॉप्स हैं, तो दोनों ही शॉप्स में कोई नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ का सामान अच्छा नहीं है उससे ले लो. कोई बोलेगा क्या? नहीं. भले उनको पता है कि हमारे यहाँ पे चीज़ अच्छी नहीं है या फिर हमारे से बेटर वहाँ पे सेल होती है, फ्रेश चीज़ें वहाँ सेल होती है, बट आप कभी नहीं बोलोगे कि हमारे यहाँ पे चीज़ें सही नहीं है. तो यही चीज़ है कि कभी भी कोई भी अपनी चीज़ों को गलत नहीं बताता या नीचे नहीं दिखाता है एज कम्पेयर टू अदर्स. यानी कि दूसरे भले तारीफ नहीं कर रहे हो आपकी चीज़ों की, बट आप बिल्कुल करोगे. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज लाइक्स टू से समथिंग अबाउट हर हाउस एंड बिलोंगिंग्स एज इफ ऑल हर गीज आर स्वैट्स. फॉर एग्जाम्पल, देर इज दिस लेडी जिनके पास घर है, ठीक है, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं, बट वो हमेशा अपनी चीज़ों को ऐसे बताते हैं कि देखो मेरा घर तो इतना अच्छा है, इट्स द बेस्ट हाउस, हमने पेंट कराया, इस तरीके से कि हमारी चीज़ें सबसे बेस्ट है, दिस कार लाइक दिस इज द लेटेस्ट वन, नोबडी हैज़ दिस. इस तरीके से जो लोग नहीं होते, मतलब कि हमारी चीज़ें बेस्ट है, मतलब और तो कोई खरीद ही नहीं सकता, हम ही हैं बस एक. तो उनके लिए ये प्रोवर्ब बिल्कुल फिट बैठता है. एवरी मैन थिंक्स हिज ओन गीज स्वैन्स. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री. यानी कि सेम बिजनेस है, 2 लोग सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं, या फिर एक ही बिजनेस में 2 सेम माइंडेड लोग हैं, ठीक है, तो दोनों
एक ही चीज़ पे अग्री कर जाएं, बहुत कम ऐसा होता है। लाइक बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू आर्ग्यू, जैसे हिंदी में कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती, यानी कि एक म्यान जो होता है इसमें तलवारों को रखते हैं, ठीक है, तो आप दो तलवारों को एक म्यान में नहीं रख सकते, यानी कि दोनों ही तलवार हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों के पास ही अच्छे आइडियाज़ हैं और दोनों एक जगह पे एक साथ काम कर लें, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब होता है पीपल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस, ज्यादातर इसको बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, ऑलवेज बिलीव दैट दे नो बेटर देन देयर कोलीग्स और कॉम्पिटिटर्स एंड दस रेयरली अग्री विद ईच अदर। तो कोई दो लोग सेम बिजनेस में हैं या कोई सेम चीज पे काम कर रहे हैं या किसी भी सेम आइडिया पे दोनों लोग वर्क कर रहे हैं और दोनों ही बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पे, तो वो लोग अग्री कर जाएं कि हाँ मेरा कॉम्पिटिटर या मेरे साथ जो काम कर रहा है वो बेटर है मुझसे, ऐसा बिल्कुल या वो ना के बराबर होता है। ऐसे बहुत कम लोग अग्री कर जाते हैं, दे आर लाइक वेरी बहुत समझदार होते हैं वो, कि नहीं चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं सुन लेता हूँ अगली बार वो सुन लेगा। बट ज़्यादातर क्या होता है, अगर कोई दो कुलीग्स हैं, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, यही प्रूव करना चाहेंगे कि मेरा आइडिया बेटर है, मैं ज़्यादा सही बता रहा हूँ। डन। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द आर्किटेक्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन फॉर माई फ्लैट, दे लुक परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर बनवाना है, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा घर बनवाने वाले हो, आपने हायर किए दो आर्किटेक्ट्स, यू काइंड ऑफ थॉट कि चलो दोनों से मैं एक एक ओपिनियन ले लेता हूँ। नाउ यू कॉल्ड बोथ ऑफ देम, जो कि बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं अपने जो भी एरिया है या जो भी लोकेलिटी है उसके। नाउ वन ऑफ द पर्सन टोल्ड कि इस तरीके से करवाइए, ये ज्यादा बेटर होगा, ऐसा ऐसा, और दूसरे पर्सन ने बिल्कुल उसका ऑपोजिट बताया कि नहीं आपको ये चीजें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक बार अग्री नहीं करेंगे, बोथ ऑफ देम आर कॉम्पिटिटर्स, दोनों को लगेगा कि नहीं मुझसे काम कराएं या मुझे ये ऑर्डर दें, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा है कि आपने उन दोनों आर्किटेक्ट्स की बात सुनी, बोथ ऑफ देम टोल्ड यू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ओपिनियंस, और इस वजह से आप बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल देख पा रहे थे अपनी आंखों के सामने कि टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज एज यू सॉ सो शैल यू रीप, यानी कि जैसा आप बोगे, जैसा करोगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। यू वुड गेट द फ्रूट दैट you kind of practice the same thing you are going to get back। इसका मतलब आप जैसा किसी के साथ बिहेव करते हो, आप जैसा भी कुछ करते हो अपनी लाइफ में, इफ इट इज समथिंग वेरी गुड, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इफ यू रिस्पेक्टेड समबडी, अगर आपने किसी से बड़े अच्छे से बात की तो वो पर्सन भी आपसे वैसे ही बात करेगा। सो ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि द वे यू बिहेव विथ एनीबडी, द वे यू प्रैक्टिस एनीथिंग इन योर लाइफ, द सिमिलर रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट। तो अगर आपको कभी लगता है कि अरे ऐसा कैसे, मुझसे ऐसे बात कैसे कर ली उसने, मुझे बुरा लग गया एंड ऑल, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वेदर यू ऑल्सो डिड द सेम थिंग विद दैट पर्सन। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो भाई द अदर पर्सन इज लाइक दैट, बट येस अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया, डेफिनेटली द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू एंड ऑल्सो द वाइस वर्सा। सो द वे यू बिहेव इन लाइफ विल अफेक्ट द ट्रीटमेंट यू विल रिसीव फ्रॉम अदर्स। ये एक बेसिक सा मीनिंग है इसका कि अगर आपने कुछ भी किया जिसका रिजल्ट ए था, या फिर बोल सकते हो अगर आपने ए के एफर्ट लगाए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ए ही मिलेगा, बी नहीं मिलेगा। क्लियर? जैसे कि जनरली अगर हम देखें तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने जिस चीज़ के बीज लगाए हैं, आपने जो भी प्लांट ग्रो करने के लिए आपने सीड्स डाले, तो वही प्लांट ग्रो करेगा, कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम हिंदी में बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये, राइट। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, किसी के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाती है, और अगर उस पर्सन ने वैसा ही कुछ किया था लाइक थोड़े टाइम पहले, तो हम ये प्रोवर्ब को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Rohan is skilled, but he did not put any effort into his studies and left college in between. As a result, he has no degrees to get a good job because as you sow, so shall you reap. तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है कि रोहन कोई पर्सन है, स्किल्स हैं उसमें, यानी जनरली जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग, उसके अलावा उसको चीज़ें आती भी हैं करना, बट बिकॉज उसने कभी भी अपनी पढ़ाई में मेहनत नहीं की, कभी एफर्ट्स नहीं डाले, कॉलेज भी बीच में छोड़ दिया, तो इसका जो उसने एफर्ट्स लगाए थे या जो भी उसने चीज़ की थी, ठीक है, जो हमारा पहला पार्ट है एज यू सो, तो वो क्या था कि उसने सब चीज़ें करी नहीं, कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, डिग्री नहीं मिली उसको, राइट। तो उसका रिजल्ट क्या था कि उसको कोई भी गुड जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज ही हैज़ नो डिग्रीज टू प्रूव कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें जानता हूँ या आई नो दिस हाउ टू वर्क फॉर इट। तो इस तरीके से ये चीज़ है कि क्योंकि उसने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, उसने कोई कोशिश नहीं की, उसने सब कुछ बीच में ही छोड़ दिया, तो उसका रिजल्ट भी क्या मिल रहा है उसको कि वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसा वो चाहता है। सो दिस इज हाउ इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एज यू सो, सो शैल यू reap. Done? All right.
नेक्स्ट प्रोवर्ब इज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अब ये जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोवर्ब तो है ही, बट थोड़ा सा हिंदी में अलग हो जाता है, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा अलग है। इंग्लिश में ये लिखा रहता है कि आपके पास अगर कोई कपड़ा है, ठीक है, आपके पास कोई भी क्लॉथ कितना भी मीटर का है, उसी में से कोट आपको बनाना है, तो आपको कट उसी हिसाब से करना चाहिए, राइट। यानी अगर आपके पास कपड़ा है किसी छोटे बच्चे के कोट का बनाने का और आप अगर चाह रहे हो आपके लिए ब्लेजर या कोट बन जाए, वो हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब जैसी आपके पास चीज़ें हैं, जितनी भी पैसे हैं, जितनी भी एबिलिटी है, उसी हिसाब से आपको खर्चा करना चाहिए, जिसे हिंदी में कहा जाता है जितनी चादर लंबी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई आपको चीज़ें दिख रही हैं जो बड़ी कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं, आपको बड़ी अपीलिंग सी लग रही है कि यार ये खरीद लेते हैं ऐसा वैसा, तो आपको पेरेंट्स यही समझाते हैं ना, बेटा जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, यानी जितने तुम्हारे पास एबिलिटी है, जितने पैसे हैं, मनी है, उतनी ही चीज़ें खरीदो, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कहाँ से क्यों उधार लेके थोड़ा ना करोगे। क्लियर? तो इसका मतलब यही होता है, अंडरटेक ओनली वॉट यू हैव द मनी और एबिलिटी टू डू और नो मोर। भले वो पैसे से रिलेटेड चीज़ हो कि कुछ खरीदो तो उतने का ही खरीदो जितने तुम्हारे पास पैसे हैं, या फिर कोई चीज़ वैसी ही करो जितनी तुम्हारे पास ताकत है, जितनी एबिलिटी है, उससे ज़्यादा मत करो। यही ये प्रोवर्ब का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आई वुड लव अ लग्जूरियस हाउस बट हैव टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली मुझे भी एक लग्जूरियस सा, बिल्कुल एक महल टाइप का घर चाहिए, बंगला चाहिए, बट आई कांट बाय दैट एट अ मोमेंट। क्यों? बिकॉज जितने मेरे पास भाई कपड़ा होगा उतना ही मैं कोट कट करूंगा, यानी कि आई वुड हैव टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डायमंड कट्स डायमंड। इसका मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच टू पीपल अगेंस्ट ईच अदर आर इक्वली डिवियस और कनिंग। अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा उसका नेचर है कि कुछ गलत करने में बड़ा दिमाग चलता है, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ डील करने के लिए उसी का जैसा कोई चाहिए होगा, राइट। इसका मतलब होता है लोहे को लोहा काटता है। इफ देयर इज समथिंग, उतनी ही इक्वल प्रोबेबिलिटी, उतनी ही इक्वल एबिलिटी, उतना ही इक्वल एफर्ट वाला कोई पर्सन होगा, तभी वो डील कर पाएगा इस पर्सन या सिचुएशन के साथ। वही मीनिंग होता है इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ केस ऑफ डायमंड कट्स डायमंड, बोथ टीम लीडर्स वर इक्वली क्लेवर। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर मैचेस गोइंग ऑन, दो ही मैचेस हो रहे हैं भाई, दोनों मैच के जो टीम लीडर हैं वो दोनों ही एक जैसे हैं, बिल्कुल क्लेवर, कनिंग, डिवियस, ठीक है, तो दोनों ही क्या है भाई, एक जैसे हैं, तो एक दूसरे के साथ डील करेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो गई, एक डायमंड कैन कट अ डायमंड, सो बोथ वर इक्वली क्लेवर, बोथ कुड डील विद लाइक सेम एफर्ट। अगर एक चीट कर रहा होगा या एक कोई मैच फिक्स वगैरह कुछ कर रहा होगा, दूसरा भी वही करेगा, तो सेम सिचुएशन हो जाएगी। तो दिस इज हाउ डायमंड कट डायमंड का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट एंड द फाइनल प्रोवर्ब फॉर दिस वीडियो इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ होता है, राइट। इसका मतलब भाई अगर जो एक जैसे होते हैं, सेम एक तरीके के सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं, सेम थिंकिंग वाले, सेम चीज़ें पसंद होती हैं एंड ऑल, तो वो हमेशा एक साथ ही आपको दिखेंगे। सो चोर चोर मौसेरे भाई, हम जानते हैं लाइक एक पर्सन कोई चोर है, ठीक है, थीफ है, और दूसरा भी कोई चोर है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई दोनों क्या है, कजन ब्रदर्स हैं, मौसेरे भाई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक जैसे हैं, वन सॉर्ट ऑफ पीपल हैं, तो दे वुड बी लाइक together. So birds of a feather, same birds are always found in a flock, यानी कि they fly together in a group. So people of the same sort or with the same taste and interest will be found टुगेदर। जिनके भी सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम लाइक्स होते हैं, सेम थिंकिंग होती है, उनको आप हमेशा एक साथ ही एक ग्रुप में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स हु अटेंडेड द पार्टी वर लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉकिंग टुगेदर, दे वर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट फॉर एन इवेंट, आप किसी पार्टी में गए और समथिंग, वहाँ आपने देखा कि कुछ लीडर्स आए हुए थे और वो लीडर्स का ग्रुप में से ही कुछ लोग एक साथ थे और वो एक ही चीज़ से बातें कर रहे थे, एक ही जैसा इंटरेस्ट था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ऐसा होता है ना कि अगर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ होते हैं जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, वो बुक्स के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, या फिर कुछ कोई नया इवेंट आने वाला होगा, या कोई भी कोई नया ऑरेटर आया है, तो उसी के बारे में बात करते रहेंगे। तो क्या हो गया, सेम इंटरेस्ट है, सेम लाइक्स हैं, सेम डिसलाइक्स हैं, तो इसीलिए वो लोग हमेशा आपको एक साथ ही दिखेंगे। तो वहां पर आप एप्लीकेबल कर सकते हो इस प्रोवर्ब को, दैट बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। डन? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the topic, that is what exactly do we mean by a word proverb, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, and then we discussed 25 very common
proverbs with their meanings both in English and Hindi language and also with a sentence, so that आपको जनरली ऑब्वियसली आप समझ गए होगे कि प्रोवर्ब्स को याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे उनका मीनिंग जो है कहीं ना कहीं आपको कन्वे हो ही जाता है. एंड ऑल्सो वी सॉ द सिचुएशन सो दैट यू कैन यूज दीज इन योर कॉन्वर्जेशन. तो ये भी एक तरीका है कि जनरली बोलना कि भाई एक जैसे लोग तो एक जैसे ही मतलब मिलेंगे एंड ऑल, आप इस को यूज कर सकते हो प्रोवर्ब को, जैसे कि हमने लास्ट वाला देखा लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सो दैट आपकी कॉन्वर्जेशन थोड़ी क्रिएटिव भी लगेगी, आपका वोकैब भी इंप्रूव हुआ कहीं ना कहीं इससे. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज प्रोवर्ब्स टू improve your daily conversations. Done? All right. So with this we come to an end of this interesting topic, but yes, we are going to meet very soon in the upcoming video where we are going to see other 25 more proverbs, so that आपके पास total 50 proverbs हो जाएंगे in your pocket. So let's just meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.